मुझे पब्लिक सर्विस करनी है, जबकि आपको चाहिए लाल बत्ती वाली गाड़ी। फ्रेमिंग मतलब आप सच को बदल नहीं रहे, आप सिर्फ सच के एंगल को बदल रहे हो। इस इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स तब आएंगे जब आप वो बोलोगे जो आपके इंटरव्यूअर सुनना चाहते हैं। अपना डैफ देखो, व्हाट वुड मेक अ बोर्ड मेंबर रेज एन आईब्रो? ग्रेजुएशन में स्कोर कम है, गैप है, फ्रेम अ नैरेटिव ऑफ लर्निंग अराउंड इट बिफोर यू एंटर दैट रूम। नेवर फेक योर हॉबीज, फ्रेम योर रियल लाइफ with honesty but strategy. I am sorry to tell you that in UPSC interview, some people lie and still get selected. Not because the board didn't catch them, but because they lied smartly, confidently, and in a way that didn't sound like a lie at all. And before you judge, let's understand something uncomfortable. Honesty और transparency दोनों में difference होता है. UPSC interview में diplomacy is often mistaken for lying. And that's what we'll decode today. चलो रियलिटी चेक से शुरुआत करते हैं। हर साल 2000 से ज्यादा कैंडिडेट्स यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट में अपीयर करते हैं। बोर्ड को पता है that these aspirants have memorized DAF, prepared polished answers and practiced hundred of mocks. Nobody walks in as a raw, unfiltered version of themselves. So when we say lie, it's not about faking your marks or making up fake experiences like some candidates. It's about the small, subtle ways we curate reality, like saying, I'm passionate about rural development, when your real motivation is job security. Claiming, मुझे public service करनी है, जबकि आपको चाहिए लाल बत्ती वाली गाड़ी. और answering, I read the newspaper daily, जबकि पढ़ते आप summaries हैं. ये सब झूठ नहीं है, ये सब socially acceptable half truth है. A form of strategic communication. देखो, इंटरव्यू बोर्ड को सेंट्स नहीं चाहिए, उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए. और एक एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है टू प्रेजेंट ट्रूथ विद अ टैग। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टॉपर्स डू इट। व्हेन यू वॉच देयर इंटरव्यूज ऑन यूट्यूब, नोटिस समथिंग। देयर आंसर्स आर नॉट ब्रूटली ऑनेस्ट, they are selectively honest. Take Tina Dabi's interview, for example. When asked about her choice for IAS, she said, I want to work in education and women empowerment. Did she know her first posting might have nothing to do with that? Of course. But what she did was express idealism. Or consider Kanish Kataria, who admitted his strength was analytical thinking, not humility, not empathy, not hard work. That's also selective self-branding, showing your professional strength, not your emotional flaws. देखो, the real game is not lying, it is framing. Framing मतलब आप सच को बदल नहीं रहे, आप सिर्फ सच के एंगल को बदल रहे हो. For example, instead of saying I failed prelims twice, you can say those 2 attempts helped me build the patience and conceptual clarity. It's the same fact, but the frame is positive, confident and growth oriented. और सबसे बड़ी बात, this frame shows a good trait of your personality. देखो, ऑब्जेक्टिव कोई ऑथेंटिक सेल्फ होने का बैच लेना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है इस इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाना. इस इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स तब आएंगे जब आप वो बोलोगे जो आपके इंटरव्यूअर सुनना चाहते हैं. साइकोलॉजिस्ट कॉल दिस इंप्रेशन मैनेजमेंट, the ability to control how others perceive you. And it is one of the most essential skills for leadership. Not only UPSC interviews, corporate interviews में, mass rallies में, election speeches में, हर जगह ये expected है. Politics में तो ये survival है, और administration में ये एक art है. UPSC interview board, especially senior members, actually आपकी moral flexibility भी test करते हैं. आपके सामने ethical dilemmas throw करते हैं to see how you balance truth and diplomacy. Example, क्या आपको लगता है कि देश की आजादी के इतने सालों बाद भी रिजर्वेशन कंटिन्यू होनी चाहिए? अ ब्लंट नो शोज एरोगेंस, इनसेंसिटिविटी, और फेक यस पीपल प्लीजिंग दिखाता है. लेकिन अगर एक बैलेंस्ड आंसर दे दो, जैसे कि रिजर्वेशन एक सोशल जस्टिस का टूल है, लेकिन हमें ये इंश्योर करने की जरूरत है कि ये जेन्युइनली एम्पावर करे मार्जिनलाइज सेक्शन को और इसका मिसयूज ना हो और ये फर्दर इनइक्वालिटीज क्रिएट ना करे. ये क्या दिखाता है? इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और सोशल सेंसिटिविटी. आपने झूठ नहीं बोला, you just negotiated the truth. That's exactly what bureaucrats do every single day. Negotiate truth between law, compassion, order and flexibility. देखो, यूपीएससी इंटरव्यू में 3 तरह के झूठ होते हैं. सबसे पहला होता है एथिकल लाई, सफेद झूठ, जो डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जाता है या अननेसेसरी जजमेंट को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है. जैसे कहना, आई लेफ्ट माई जॉब टू प्रिपेयर फुल टाइम, जबकि आपने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि आपको सैलरी इतनी कम मिल रही थी, पूरे दिन काम करना पड़ रहा था और आप कोई फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे.
दूसरे होते हैं डिप्लोमैटिक लाइज, यूज्ड टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट विदाउट डिसरिस्पेक्ट। एग्जाम्पल, शुड इंडिया प्राइवेटाइज ऑल PSUs? आप कहोगे प्राइवेट पार्टिसिपेशन कैन ब्रिंग एफिशिएंसी बट PSUs आल्सो इंश्योर पब्लिक वेलफेयर। तीसरा झूठ होता है डिफेंसिव लाई। अब ये थोड़े रिस्की होते हैं, मतलब एक हॉबी फेक कर देना या कुछ ऐसा क्लेम कर लेना कि आप जानते हो जो इसके बारे में आपको अच्छे से पता ही नहीं है। ये यूजुअली बैकफायर करते हैं क्योंकि इस पर बोर्ड डीपर डिग करेगा। एक कैंडिडेट थे जिनका मैंने मॉक इंटरव्यू लिया, बाद में उनकी टॉप 10 में रैंक आई। मैंने उन्हें किसी और कैंडिडेट को कहते हुए सुना, नेवर लाई अबाउट समथिंग दे कैन वेरीफाई, दैट्स द गोल्डन रूल। देखो बोर्ड को भी पता है आप इंसान हो, कभी ना कभी झूठ बोलोगे, आपका इंटेंशन इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। वो 3 डीप ट्रेट्स ढूंढ रहे हैं स्मार्ट लायर्स के। सबसे पहला, कंपोजर अंडर प्रेशर, मतलब अपने आप को डिफेंड करने की एबिलिटी, लेकिन कामली, भले ही वो हाफ बेक्ड हो। दूसरा, कंसिस्टेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इवन अ स्मॉल इनकंसिस्टेंसी कैन कॉस्ट यू योर इंटरव्यू, लाइक सेइंग यू लव रीडिंग लेकिन यही नहीं पता कि पिछली कौन सी बुक पढ़ी थी, या पढ़ी थी तो उसका ऑथर कौन था, या उसका प्लॉट क्या था, वो ही याद नहीं है। ये रिवील करता है फेक एंथुसियाज्म। तीसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस, नोइंग व्हाट टू से, और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन टू स्टॉप एंड टू नो हाउ टू एग्जिट एन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन ग्रेसफुली। तो कैसे करते हैं ऑनेस्टी और डिप्लोमेसी को बैलेंस? 3 स्टेप अप्रोच है जो सारे हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स यूज करते हैं। सबसे पहला, प्रिपेयर योर पर्सनल ट्रूथ्स, राइट डाउन आपकी रियल मोटिवेशन क्या है, फेलियर्स क्या है, आपकी जिंदगी की कहानी क्या है। फिर सीखो कि इसे पॉजिटिवली और पर्पसफुली कैसे फ्रेम करना है। अपना डैफ देखो, व्हाट वुड मेक अ बोर्ड मेंबर रेज एन आईब्रो? ग्रेजुएशन में स्कोर कम है, गैप है, फ्रेम अ नैरेटिव ऑफ लर्निंग अराउंड इट बिफोर यू एंटर दैट रूम। प्रैक्टिस न्यूट्रल इमोशन, इवन इफ यू आर कॉर्नर्ड, कभी भी डिफेंसिव, सरकास्टिक, गुस्से वाली टोन में नहीं आना। काम टोन की ट्रेनिंग करनी है। काम टोन इज ऑफन रेड एज कॉन्फिडेंस, नॉट गिल्ट। देखो पैराडॉक्स ये है, यूपीएससी इंटरव्यू में जिन लोगों के हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, दे आर ऑफन नॉट द मोस्ट ऑनेस्ट बट मोस्ट सेल्फ अवेयर। They understand that truth is not about saying everything you feel. It's about saying what adds value to the conversation. एक फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन ने कहा था, we are not judging your memory or moral purity. We are judging your ability to think, reason and communicate responsibly. So when people say he lied and still got selected, maybe he didn't lie. Maybe he just understood something others didn't. That the real exam is not of truth, but of temperament. देखो आप लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज फेस करोगे, कुछ आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे, कुछ आपकी इंटीग्रिटी टेस्ट करेंगे, लेकिन यूपीएससी इंटरव्यू आपकी मैच्योरिटी को टेस्ट करता है। इट्स नॉट अबाउट नेवर लाइंग, इट्स अबाउट नेवर लूजिंग योर सेंटर इवन व्हेन ट्रूथ इज इनकन्वीनियंट। इट इज अबाउट हैविंग इंटीग्रिटी इन इंटेंशन। सो यस, you can lie and still get selected. If your lie hides ego, if your lie hides your flaws, if it serves the purpose, then yes, you may lie. बट ओवरऑल मुझे लगता है हम सबको ट्राई करना चाहिए, हम जितना ऑनेस्ट हो सकते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बिल्ड कर लें कि अगर हम अपनी पर्सनालिटी को ऑनेस्टी से भी प्रेजेंट करें तो भी हम इंटरव्यू एस कर पाए। पता है सबसे कॉमन लाइज क्या होते हैं? सबसे पहला सवाल होता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज? अगर आप बोल देंगे कि लाल बत्ती के लिए या फला फला फूफा जी, मामा जी, उनको प्रूव करना है, तो बैड इंप्रेशन। बट इफ यू फ्रेम इट एज, सर मुझे पब्लिक सिस्टम्स और गवर्नेंस के थ्रू रियल इम्पैक्ट क्रिएट करने में इंटरेस्ट है, मुझे लगता है मेरे एनालिटिकल और लीडरशिप स्किल्स इस सिस्टम के अंदर ज्यादा मीनिंगफुली यूटिलाइज हो पाएंगे, इस तरह के आंसर्स बेटर साउंड करते हैं। दूसरा सबसे कॉमन ला है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल क्यों लिया, आप तो इंजीनियर हो। फला फला ऑप्शनल क्यों लिया, आपकी तो ट्रेनिंग ही नहीं है उस ऑप्शनल में। क्लियरली बोल तो सकते नहीं है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नोट्स इजीली मिल जाते हैं, पिछले टॉपर के अच्छे मार्क्स आए थे। तो कैसे फ्रेम करते हैं, सर इंजीनियरिंग ने मुझे एनालिटिकल थिंकिंग दी, एंथ्रो में मुझे ह्यूमन साइड समझ आ रही है, मुझे लगा दोनों को कंबाइन करके मैं एक बैलेंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर बन पाऊंगा। वही सच लेकिन मैच्योरिटी के साथ। हॉबी सेक्शन में देखो, फेक हॉबी सबसे डेंजरस ला है। एक कैंडिडेट ने लिखा सिंगिंग, बोर्ड ने पूछा फेवरेट सिंगर बताओ, उसने बोला अरिजीत सिंह। अगला क्वेश्चन आया, विच वॉज हिज डेब्यू सॉन्ग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है। अब दूसरे टॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा कुकिंग, बोर्ड ने पूछा फेवरेट डिश, उसने बोला छोले भटूरे। बोर्ड ने कहा अच्छा इसके इंग्रेडिएंट्स बताओ। अब इंग्रेडिएंट्स में पता था सिर्फ छोले और मैदा, और कुछ पता ही नहीं था। यहां से आप पकड़े गए। इसका आंसर कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी इजी कोई डिश बताइए, जैसे
सर दाल तड़का मेरी फेवरेट है, क्योंकि दाल तड़का से मुझे नॉस्टैल्जिया होता है, घर की याद आती है, मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। सिंपल, इमोशनल, रियल। बोर्ड ने भी स्माइल किया। मॉरल ऑफ द स्टोरीज, नेवर फेक योर हॉबीज, फ्रेम योर रियल लाइफ विद ऑनेस्टी बट स्ट्रैटेजी। आपने मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हुए देखा है, बहुत सारे टॉपर्स को देखा है। सोचते होंगे क्या डायनामिक्स वर्क करते हैं, कैसे होते हैं ये लोग सिलेक्ट। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। I will keep sure that I guide you to ace any interview and every interview. Thank you for watching this video. Stay tuned. Do not forget to like, share, and subscribe.